Hello students, all of you welcome to your educational channel Pankaj Science World. Students, we are studying the chapter acid, bases and salt. In that acid, bases and salt, today we have to study the new topic pH of solution. This pH of solution is the very important topic, and from knowing the pH of solution we can know whether the given solution is acidic, basic or neutral. तो पदार्थ जो है वो तीन प्रकार के होते हैं, एसिडिक होते हैं या बेसिक होते हैं या न्यूट्रल होते हैं। तो एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल पदार्थ को कैसे पहचानना है, तो इसे तो हमने अलग अलग टेस्ट जो है वो हमने अब तक पढ़े हैं, जिसे हम लिटमस टेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें हम टेस्ट करके भी पहचान सकते हैं। लेकिन दिस टेस्ट आर नॉट कन्वीनियंट, बट पीएच, बाय नोइंग द पीएच यू कैन नो हाउ द एसिड इट इज वीक और स्ट्रॉन्ग, वीक और स्ट्रॉन्ग बेस। तो इससे हमें यह भी पता चलता है ये एसिड वीक है या स्ट्रॉन्ग है, तो पदार्थ न्यूट्रल है। तो ये सब जो है हमें पीएच से पता चलता है। तो पीएच किसे कहते हैं, तो इस वीडियो में आपको पीएच किसे कहते हैं इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए, पूरा जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिए। इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब दिस चैनल देन सब्सक्राइब इट, एंड इफ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू शेयर the video. Now we are going to start the pH of solution. Students, up till now we had studied the dissociation of acid and base, dissociation of ionic compound. Dissociation of ionic compounds हमने पढ़ा है। तो what is the dissociation? When the acid and base or ionic solutions are dissolved in the water, there occur the dissociation of the ions and they forms either H positive or OH negative ions. And we also see that when acid and base are dissociated, when dissolved in water, they forms H positive ions and OH negative ions respectively. It means that the acids forms the H positive ions and bases forms the OH negative ions. This H positive ion and OH negative ions are present in all natural aqueous solution. तो सभी aqueous solution किसे कहते हैं? The solution of substance in water. Solution of substance in water. तो सभी aqueous solution जो है, natural aqueous solution है, कोई भी solution water के अंदर लीजिए, that contains the H positive ions and OH negative ions, and that determines the specific property of the solution. And this extent, to know the extent of H positive ions and OH negative ion in the solution is very important. तो कोई भी solution के अंदर या कोई भी पदार्थ के अंदर उसमें कितने H positive ions है, कितने OH negative ions है, ये पता होना बहुत जरूरी है। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अब देखिए, we know that the acids are soil, the soil is divides into three groups, that is the acidic soil, then basic soil and neutral soil. And this acidic, basic and neutral soil is based on the extent of H positive ions and OH negative ions in that soil. If the soil contains more H positive ions than OH negative ions, then that soil is called as acidic. And if the soil contains more OH negative ions than H positive ions, then that soil is called as basic. And if the extents or the proportion of H positive and OH negative ions are same, that soil is called as neutral. Therefore, it is very necessary to know the extents of H positive ions and OH negative ions in any substance to find out whether it is acidic, basic or neutral. Similarly, our body also contains these ions, H positive ions and OH negative ions. The blood also contains H positive ions and OH negative ions. The blood is slightly acidic. हमारा blood जो होता है वो slightly acidic होता है, neutral होता है, सॉरी, हमारा blood जो है वो slightly neutral होता है। तो इसका अर्थ क्या है, उसमें H positive ions कम होने चाहिए, OH negative ions ज़्यादा होने चाहिए। अगर उसके अंदर H positive ions बढ़ेंगे तो हमारा blood जो है वो acidic हो जाएगा। और acidic blood, in the acidic blood the biochemical reactions in our body does not take place
नॉर्मली। तो नॉर्मली हमारे बॉडी के अंदर बायोकेमिकल रिएक्शंस नहीं होंगे, इसीलिए पीएच जो है हमारा ब्लड का मेंटेन होना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए हमें ब्लड का पीएच भी पता होना जरूरी है। तो ये पीएच कैसे पता करते हैं? देयरफॉर द ब्लड देन द सेल सेप्स दे हैव द fixed proportion of H positive ions and OH negative ions in it. Similarly, the various biochemical reactions that are taking place on our body, the various reactions are chemical reactions are occurs in the laboratory and at various places in the nature, and also the fermentation processes are carried out the microorganism, and in all that processes the proportion of H positive and OH negative ions have the certain fixed proportion and they have the certain limits. And pure water H2O, that is the pure water also undergoes the process of dissociation, and on dissociation of pure water they also forms the H positive ions and OH negative ions in equal proportion. क्या है? वाटर के अंदर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, द सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑन डिसोसिएशन फॉर्म्स सिंगल आयन ऑफ H पॉजिटिव एंड अ वन आयन ऑफ OH निगेटिव। हमने बेसिसिटी और एसिडिटी का वीडियो आपने देखा होगा। तो बेसिसिटी और एसिडिटी के किसे कहते हैं? तो एसिड से बेसिसिटी एंड बेस से एसिडिटी। तो द बेस एसिड कंटेन्स OH negative ions and base contains the H positive ions। आ गया समझ में? तो एसिड से आओ बेसिसिटी, एसिड से आओ बेसिसिटी एंड बेसिस आओ एसिडिटी। जब OH निगेटिव जो है इसका प्रोपोर्शन ज्यादा होगा तो देट इज कॉल्ड एज बेसिक, एंड H पॉजिटिव का प्रोपोर्शन ज्यादा होगा तो इट इज कॉल्ड एज एसिड। बट वाटर के अंदर H पॉजिटिव और OH निगेटिव इनका प्रोपोर्शन सेम है, दे हैव द सेम प्रोपोर्शन, देयरफॉर इट इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। इधर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, ये एसिडिक भी नहीं है बेसिक भी नहीं, क्योंकि वाटर के अंदर एक मॉलिक्यूल, प्योर वाटर के एक मॉलिक्यूल के अंदर OH पॉजिटिव और H पॉजिटिव और OH निगेटिव आयंस का प्रोपोर्शन सेम है, और सेम होने की वजह से दे वाटर इज न्यूट्रल। तो यहां पे क्या है? द वाटर हैज द प्रॉपर्टी टू अंडरगोज द डिसोसिएशन एंड देयरफॉर ए कंटेन्स द बोथ H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस, एंड दैट इज व्हाई ऑल द aqueous solution have the H positive ions and OH negative ions extend in it, but their proportions are different। और इनका प्रोपोर्शन क्या होता है? अलग अलग होता है। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हम देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल्स द प्योर वाटर का एग्जाम्पल्स, द प्योर वाटर, दूसरा केस पिन लेते हैं। प्योर वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस, pure water at 25 degree Celsius, the proportion of H positive ion, that is H positive concentration or proportion, so their proportion is 1 into 10 to the power -7 मोल पर लीटर। तो मोलैरिटी में क्या हमने इसमें पढ़ा है? तो प्योर वाटर जो है, प्योर वाटर या 25 डिग्री सेंटीग्रेड डिसोसिएट्स टू कंटेन्स द कॉन्सेंट्रेशन और प्रोपोर्शन ऑफ H पॉजिटिव आयन इज 1 into 10 to the power -7 मोल पर लीटर। तो वाटर जो है हमें प्योर है, तो इसमें कॉन्सेंट्रेशन कितना है? अब देखेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, द HCl, that is 1 molar solution, 1 molar solution of HCl at the same temperature have the proportion of 1 into 10 to the power 0 mole per liter। And for the sodium hydroxide, 1 molar solution of sodium hydroxide at 25 degree Celsius have the proportion of H positive ions that is equal to 1 into 10 to the power -14 मोल पर लीटर। तो these are the proportion or the concentrations of H positive ions in the common aqueous solution। Therefore in common aqueous solution the range of the
H positive ion, the range of concentration or proportion of H positive ion in common aqueous solution are very wide, that is 10 to the power 0 to 10 to the power minus 14. 10 to the power 0 to 10 to the power minus 14. And from that data, the Danish scientist Sorensen has given a convenient scale to express the proportion of H positive ion in an aqueous solution, and that scale is called as pH scale. तो इस स्केल जो है उस स्केल को कहते हैं pH scale, and this pH scale is given by the scientist Sorensen in 1999. So this is called as pH scale, and in that pH scale, P stands for power and H stands for hydrogen. Therefore the pH scale gives the power of hydrogen. Power of hydrogen, it is also called as potence of hydrogen ion. Potence of H पॉजिटिव आयन. तो H पॉजिटिव आयंस कितने हैं ये हमें pH स्केल से पता चलता है. तो देन व्हाट इज द pH स्केल? दिन नॉर्मल द pH स्केल इट इज रेंज फ्रॉम 0 to 14, जैसे हमने पढ़ा है. तो pH इज रेंज फॉर 10 to the power 0 to 10 to the power minus 14. तो दिस pH स्केल इट हैज बीन मेड, मैं इसको ऐसे निकालता हूं, ये मिड पॉइंट है. इट रेंज फ्रॉम 0 to 14 एंड एट मिडल इट इज 7. At middle it is fever. The pH of water, pH of pure water is 1 into 10 to the power minus 7 mole per liter, and pH of water is considered as a 7 is equal to 1 into 10 to the power minus 7 mole per liter. तो वाटर की जो pH है वो 7 मानी जाती है, और हमें पता है ऑन द डिसोसिएशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इट गिव्स द सेम नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन एंड OH नेगेटिव. प्योर वाटर के अंदर ये हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन यानी कि H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन दोनों का प्रोपोर्शन सेम होता है. तो सेम होने की वजह से H पॉजिटिव ज्यादा है तो एसिडिक, OH नेगेटिव ज्यादा है तो बेसिक. तो सेम है तो नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, देयरफॉर इट इज न्यूट्रल. अगर pH कोई पदार्थ की 7 है तो उसे कहा जाता है न्यूट्रल. द प्योर वाटर pH 7 इज टेकन एज अ neutral, and therefore the 7 is the midpoint of our pH scale. हमारी जो pH scale है उसका middle point जो है वो 7 है, and 7 is the neutral. And below the 7, if the pH is below 7 then it is called as acidic, and if pH is more than 7 then it is called as basic substance. आ गया समझ में? pH 7 है तो neutral, बिलो 7 इट इज एसिडिक, एंड अबो 7 इट इज 14. हमने देखा था ये दिस इज द pH ऑफ HCl. ये HCl की pH है और ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड. सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है तो इसकी pH 10 टू द पावर माइनस 14, दैट इज हमने 14 ली है. यहाँ पे निगेटिव नहीं लिया है, यहाँ पे पॉजिटिव लिया है pH स्केल पे ऊपर 0 to 14. तो इसके बीच में फिर 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड 0. हियर 8, 9, 10, 11, 12, 13. एंड द pH रेंज ऑल्सो इंक्रीजेज सिमिलरली. अब देखिए, अब जैसे जैसे pH कम होती जाएगी वैसे वैसे एसिड जो है वो उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते जाएगा. इट इज मोर एसिडिक, दैट इज द एसिड बिकम्स मोर स्ट्रॉन्गर. अगर pH 1 है तो फॉर एग्जाम्पल दो पदार्थ है, एक का pH है 1 और दूसरा पदार्थ है इसकी pH है 5. तो इसमें से हमने पता करना है विच सब्सटेंस इज मोर एसिडिक. बोथ आर एसिडिक, दोनों क्या है एसिडिक है क्योंकि pH उनकी 7 से ज्यादा है. लेकिन जिसकी pH 1 है इट इज मोर एसिडिक, एंड जिसकी pH 5 है ये लेस एसिडिक. द pH हैविंग 1 इट इज स्ट्रॉन्ग एसिड देन दैट ऑफ द सब्सटेंस हैविंग pH 1. देयरफॉर दिस सब्सटेंसेस आर द स्ट्रॉन्ग एसिड व्हिच हैज द pH लेस. जिसकी pH कम है ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, और जिसकी pH ज्यादा है यानी कि अप टू 14 दीज आर कॉल्ड एज अ स्ट्रॉन्ग बेस.
तो जैसे जैसे हम इधर जाएंगे तो बेसिसिटी कम होती जाएगी, एसिडिटी बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे हम इधर जाएंगे वैसे वैसे एसिडिटी कम होती जाएगी और बेसिसिटी बढ़ती जाएगी। तो इसका अर्थ क्या है? इफ वी मूव फ्रॉम 0 to 14, at that time the concentration or proportion of H positive ions decreases and OH negative ions increases. That is, it contains more OH negative ions and it contains more H positive ions. और जैसे जैसे pH कम होती जाएगी वैसे वैसे OH का concentration कम होते जाएगा और H positive ion का concentration बढ़ते जाता है। आ गए समझ में? तो बच्चों यहाँ पे अब देखिए, हियर इज अ चार्ट, यहाँ पे एक चार्ट जो है आपके सामने दिख रहा है, एंड इस चार्ट के अंदर दिया है पीएच वैल्यू ऑफ सम एक्वाइज सॉल्यूशन। एक्वाइज सॉल्यूशन में वाटर के अंदर इनका सॉल्यूशन लिया है और इस सॉल्यूशन के अंदर उनकी पीएच रेंज, पीएच की वैल्यू यहाँ पे दी है। तो यहाँ से आपको न्यूट्रल सब्सटेंस कौन कौन से, एसिडिक सब्सटेंसेस कौन कौन से और बेसिक सब्सटेंसेस कौन कौन से, ये आपको पता चलता है। विच आर द स्ट्रॉन्ग एसिड, विच आर द स्ट्रॉन्ग बेस, जिनकी पीएच सबसे कम है दैट आर द स्ट्रॉन्ग एसिड, जिसकी पीएच सबसे ज्यादा है 14 तक है दैट आर द स्ट्रॉन्ग बेस। तो सबसे पहले इसमें है 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ HCl जिसकी पीएच है 7, देयरफॉर इट इज स्ट्रॉन्ग एसिड। गैस्ट्रिक जूस 1 pH, लेमन जूस 2.5, विनेगर 3, टोमेटो जूस 4.1, ब्लैक कॉफी 5, रेसिड रेन 5.6, and our urine has the pH 7 and the rain or milk has the pH 6.5। तो यहाँ तक जो भी पदार्थ है ऑल दीज आर द एसिडिक, ये सबसे क्या है एसिडिक है। तो इसमें अब देखेंगे यूरिन और रेन वाटर और मिल्क, इनकी pH है 6 to 6.5, दीज आर द वीक एसिड, ये क्या है वीक एसिड। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे एसिडिक सब्सटेंस बढ़ते जाएंगे, जैसे हमने देखा है HCl, गैस्ट्रिक जूस, लेमन जूस, दीज आर द स्ट्रॉन्ग एसिड्स। उसके बाद जो एसिडिटी कम हो जाएगी, इट मीन्स दैट दे कंटेन्स द मोर H पॉजिटिव आयंस। और जैसे जैसे हम नीचे आएंगे, अब देखिए प्योर वाटर एंड शुगर सॉल्यूशन हैज pH 7, अब इनकी pH 7 है तो प्योर वाटर और शुगर सॉल्यूशन ये न्यूट्रल है। और उसके नीचे जाएंगे ब्लड हैज pH 7.4, तो ब्लड की pH 7.4 है तो इट इज स्लाइटली बेसिक और स्लाइटली अल्कलाइन भी जिसे कहते हैं, द बेसेस आर आल्सो कॉल्ड एज अल्कली। तो हमारा ब्लड जो है वो स्लाइटली अल्कलाइन होता है, स्लाइटली बेसिक होता है, जिसकी pH है 7.4। तो इसका अर्थ क्या है? इट कंटेन्स slightly more H negative OH negative ions as compared to H positive ion। Then solution of baking soda, बेकिंग सोडा जो हमारे किचन में यूज किया जाता है, इस pH is 8.5, therefore it is basic। टूथपेस्ट इज बेसिक 9.5। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसका अर्थ है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसकी pH है 10.5। लाइम वाटर 11 और 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaOH हैज द pH 14, देयरफॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। आ गया बच्चों समझ में? तो दिस इज ऑल अबाउट द pH। थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।